for the second half session. Let's be ready for the practices like pranayams along with asanas. Okay, so we'll focus on the pranayams along with the asanas. First asana we will be doing is Marjarasan A and B. In that, where to breathe in, where to breathe out, I will be guiding you. Okay, so you are sitting in this comfortable posture with the legs straight. This is called as Dandasana. Take the legs behind and sit on the knees. Now you take a comfortable distance between your knees, forearm distance. Same distance you can take forward and come up. Okay. So now you can see that your back is parallel to the floor. Okay. And your shoulders, the palms below the shoulders, below the hip, the knee joint. And there is distance between the feet are relaxed. अब हमें मार्जासन ए में जाना है. हिप्स को ऊपर उठा के गर्दन को ऊपर उठाओ. And now close your eyes. This is B, breathing in A. Breathe out in B. तो पीठ को देखो ऊपर घुमाना है, गर्दन को नीचे, chin touching the collarbone. Okay? So let's do 6 rounds. Breathe in A, cat pose A. Breathe in B, breathe out B. Breathe in, breathe out 3. Breathe in, breathe out 4. Breathe in, breathe out 5. Breathe in, breathe out 6. And sit relaxed. Okay, you can sit in Vajrasana or you can sit in the relaxed position. Now sit on the back half of the mat, and the next practice in sitting will be Shashank breathing. इसमें आपको हाथों को ऊपर उठाना है, breathe in, and हाथों को नीचे लेते हुए breathe out. See that you are not lifting your hips up, you are seated on the heels. Okay, so we will do 6 rounds of Shashank breathing. Back straight, sitting in Vajrasana. जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे. All the breathing practices are very important practices which we are doing today for improving the lung capacity, improving the flexibility of your chest muscles, your back muscles, your ribs, lungs. Okay, तो जो भी हमारे respiratory organs है, respiratory supporting muscles है, उनका health अच्छा होता है जब हम इस प्रकार आसनों के साथ breathing करते हैं. So let's be ready for Shashank breathing. Breathe in and go down. Breathe out. थोड़ा धीरे करो. Again, breathe in, breathe out 2. You can keep distance between your knees. Breathe in, breathe out 3. Breathe in, breathe out 4. Breathe in, breathe out 5. Breathe in, breathe out 6. And gently come back. Now you release your Vajrasana, relax for a while. थोड़ा विश्राम करेंगे. ब्रीद इन ब्रीद आउट पर ध्यान दें. नॉर्मल सहज ब्रीदिंग पर फोकस करें. नाउ एब्डोमिनल ब्रीदिंग को उदर श्वसन, जिसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, उदर श्वसन को एनहांस करने के लिए 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वी विल डू. वन इज द डॉग ब्रीदिंग, श्वान ब्रीदिंग, एंड वन इज द रैबिट ब्रीदिंग. ओके, तो पहले हम डॉग ब्रीदिंग पर करेंगे जिसमें हमें थोड़ा फास्टर ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट करना है. तो आप इस तरह से ऐसे वज्रासन में बैठेंगे, थोड़ा घुटनों में अंतर रख सकते हैं. अदरवाइज आप पालथी मार के बैठो. पर डॉग्स यानी कुत्ते जनरली, श्वान इस तरह से बैठते हैं ना. सो पपीज और डॉग्स सिट इन दिस मैनर. हाथों को ऐसे रखना है. एंड नाउ यू विल टेक द टंग आउट एंड रैपिड ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे. तो यहाँ पे आपका टमी हिट होगा स्टमक पे. तो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर एब्डोमेन एंड योर डायफ्राम. इट इज एनहांसिंग, या तो एब्डोमेन ब्रीदिंग आपका इससे ज़्यादा अच्छी तरह से होता है. सो आई शो यू वंस. ओके, गॉट इट. सो टंग आउट एंड सी, ऐसे फास्ट करना है. ओके, सो लेट्स डू 10. ऐसे बैठो. टेक द स्टिक द टंग आउट. It's like the mouth breathing only. So you will feel some cooling effect on the tongue. It is a very good practice to enhance your abdomen respiration. Relax. शुरुआत में थकान होगी, बट ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अस्थमा वालों को और हमारे डायफ्राम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. ओके, लेट अस डू वन मोर राउंड ऑफ द सेम प्रैक्टिस ऑफ श्वान ब्रीदिंग. ऐसे रहेंगे. साइड से देखोगे तो आप थोड़ा सा आगे झुके हैं ऐसे. यू आर नॉट स्ट्रेट. ओके, तो हाथों को घुटने के बाजू में रखिए ऐसे. एंड देन
stop. Okay, relax for a while. You can have sips of water if you want to, because it is a little bit exertive practice. Okay. Yes, relax for a while. Next breathing is a very nice breathing which improves your abdomen breathing as well as the chest breathing, और वो है रैबिट ब्रीदिंग. रैबिट्स कितना फ्लोर के ज़मीन के नज़दीक होते हैं उतना नीचे हमें जाना है, एंड देन यू हैव टू ब्रीद इन ब्रीद आउट रैपिडली. तो इसमें आपको टंग को रोल करना होगा. तो आपको क्या करना है, नीचे के दांत और नीचे के ओठ के बीच में टंग को रखना है, ज़बान को. सपोज ये नीचे के दांत है तो नीचे के दांत के बाहर से टंग आएगा और उसके बाद में आपका लोअर लिप है ऐसे. ओके, सो यू आर कीपिंग द टंग बिटवीन द लोअर लिप एंड द लोअर सेट ऑफ टीथ. ओके, दिस वे यू आर गोइंग टू डू एंड देन यू विल गो फॉर दी रैपिड ब्रीदिंग. इसमें भी आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट रैपिडली करना है. आई शो यू हाउ इट इज डन. आई शो यू फ्रॉम द फ्रंट. अब पहले आपको डिस्टेंस लेना होगा. सपोजिंग आप वज्रासन में बैठे हो तो यू हैव टू गो डाउन मच. सो कितना डिस्टेंस लेकर, एक मुट्ठी उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी, इतना नीचे जाना है. फिर हाथों को, सिर की पोजीशन वही रहेगी, हाथों को ऐसे रख देना साइड में, एंड देन यू आर डूइंग द टंग. ओके, सो लेट्स सी. ये डिस्टेंस लिया, ऐसे रखा, टंग को ऐसे रखा, and then stop and come. Okay, so you are that low and trying to breathe in, breathe out rapidly. Okay, that's why it is called as the rabbit breathing, because rabbits खरगोश breathing इस तरह से खरगोश ब्रीदिंग करते हैं. तो इसमें आपका चेस्ट एंड एब्डोमेन दोनों का ब्रीदिंग स्टिमुलेट हो रहा है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स डू इट. आपको ऐसे झुकना है, ये डिस्टेंस लेना है जमीन से, फिर हाथों को साइड में रखो. टेक द टंग आउटसाइड द लोअर टीथ एंड इनसाइड द अपर लोअर लिप एंड स्टार्ट. And relax. It is a little bit exertive because a lot of pressure on your abdomen. Relax. So we will do one more round of the same practice. फिर से. And relax. Okay. Relax for a while. Not very easy practice. थोड़ा सा विश्राम करेंगे. So all these sitting practices we did cat pose A and B. फिर हमने शशांक breathing किया. Then we did dog breathing. We did rabbit breathing. 4 types of breathing practices we have learned. Very very effective practices. Relax for a while. Now let us move on for the standing practices. स्टैंडिंग में हम 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं. पहले क्रिया है वो हस्तपाद क्रिया. ओके, इसमें आपको क्या करना है, आपको आगे पीछे रैपिडली मूव होना है. सो यू आर गोइंग टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ऐसे करिए आप, हाथों को ऐसे आप खड़े हो, हाथों को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट. ओके, बट अगर किसी को वर्टिगो की इशू है, किसी को चक्कर आती है, या हाई बीपी है या स्ट्रेस है, उन्होंने कम करना है. अदर्स कैन डू. सो थोड़ा सा पैरों में अंतर रखो. लेट्स डू 10. ओके, सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फोर्सफुली. सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे. स्टार्ट. 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10. Relax. Okay, so that's a very very effective practice for improving your flexibility of the spine. बट यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट नेचुरली हो रहा है, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मसल्स है, वो अपने आप ही खींचे जा रहे हैं और उनका टोन बढ़ते जा रहा है. ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डोंट डू मच. वी विल गो फॉर द सेकेंड राउंड. अगेन 10 काउंट्स. रेडी? ऑल ऑफ यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Okay, very good. थोड़ा विश्राम करेंगे खड़े होके. Relax for a while. Breathe in, breathe out.
नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे आपको हाथों को ऐसे रखना है, इतना मतलब आपके जमीन से आपकी पीठ ऐसे पैरेलल, राउंडेड अप नहीं, पैरेलल, एंड देन यू गिव द स्ट्रोक्स लाइक कपालभाति। ओके, तो इस तरह से सामने से पैरों में अंतर, हाथ ऐसे, पीठ ऐसी, यू गिविंग स्ट्रोक्स लाइक कपालभाति। ओके, सो वी विल डू 10 स्ट्रोक। त्रिकोणासन में इसे कह सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग में, या अर्ध उत्कट आसन, ऐसे। स्टार्टिंग फॉर द स्ट्रोक्स, राउंड अप नहीं करना है पीठ को, बैक पैरेलल, यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back. You can feel the tummy going in and out and keeping the back parallel. It is enhancing again your breath exhalation. जितना हम एक्सहेलेशन फोर्सफुली करते हैं उतना हमारा लंग्स का स्क्वीजिंग अच्छी तरह से होता है और एयर इन अच्छी तरह से आती है। आपके लंग्स की जो छोटे छोटे होल्स हैं एल्वियोली, वो अच्छी तरह से ओपन अप हो जाते हैं, वहाँ से जो डस्ट है, वहाँ पे जो म्यूकस जमा है, जो कचरा है, वो निकलने में मदद होती है। वी गो फॉर वन मोर राउंड ऑफ द सेम प्रैक्टिस, placing the palms and slightly chin up. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back. Relax for a while. थोड़ा सा backward arching कर लो, normal breathing करो and relax. Okay. Now next breathing practice we will do one more breathing. It is त्रिकोणासन में breathing, और ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ लंग्स लिवर का काम भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ आपका फैट कम करने के लिए भी बहुत मददगार है। ओके, तो त्रिकोणासन आपको पता है, इस तरह से परिवृत्त त्रिकोणासन, आपको झुकना है घुटने तक ही, ऊपर वाले हाथ को देखना है और फिर स्ट्रोक्स देने। ओके, लेट्स डू 10। सो आप ऐसे हो, पहले राइट पाम को लेफ्ट नी पे रखेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखो, स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back slowly. Okay, and now bend down to the other side, same way, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back and relax. Okay, that is an exertive practice, but it is very effective practice again for the side muscles. साइड मसल्स को आपका स्ट्रेंथ मिलता है, और साथ ही साथ वहाँ का रेस्पिरेशन अच्छी तरह से होता है। अपर लोब्स ऑफ द लंग्स आर यूज्ड अप, जनरली हम मिडिल लंग्स यूज करते हैं। जब इस प्रकार करेंगे तो हमारे लंग्स का, फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा, अपर लोब्स व्हिच वी कॉल, दे आर आल्सो यूज्ड। सेकेंड राउंड ऑफ द सेम प्रैक्टिस, अगेन हैंड स्ट्रेच, बेंडिंग डाउन, थोड़ा और नीचे, लुक अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back, change, start, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back. Okay, that were all the breathing practices in standing. और अब आप पेट के बल लेट जाएंगे, lie down on your abdomen, relax on your abdomen. We will go for the practices in the prone position, पेट के बल लेटने वाले। वेरी गुड प्रैक्टिस अगेन। जैसे ही पेट के बल लेटते हैं तो जो भी हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है, हम पेट सिर से ऊपर उठते हैं ना, अपर बॉडी को उठाते हैं, सो वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। नेचुरली हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है, बिकॉज इनहेलेशन होता है। जब हम टूवर्ड्स ग्रेविटी जाते हैं, ज़मीन की तरफ जाते हैं, तो ब्रीथ आउट होता है, और जब ऊपर उठते हैं तो ब्रीथ इन। तो यहाँ पे जब हम कोई भी आसन करेंगे उठने वाला, उसमें हमारे ब्रीदिंग इन ही होने वाला है। ओके, यस, रिमेंबर। सो पेट के बल लेट जाइए, रिलैक्स इन मकरासन। So first practice will be भुजंगासन, ब्रीदिंग इन एंड आउट। तो दोनों पैरों को जोड़ो एंड पाम्स को ऐसे चेस्ट की बाजू में। अभी हमें पैरों को रिलैक्स रखना है। ब्रीद इन अप, पूरा ब्रीदिंग करके ऊपर उठना है। ब्रीद आउट डाउन। तो ये यहाँ पे हमारा स्लो ब्रीदिंग इन एंड आउट होगा, जर्क्स के साथ। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2 ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3 breathe in, breathe out.
लोअर बॉडी रिलैक्स रखो. 4 ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 5 ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 6 ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Relax for a while. Let's do one more practice. फिर से 6 counts. भुजंगासन फुल. जिनको मुश्किल लग रहा है हाथों को ऐसे रख के भी अप डाउन कर सकते हैं. अर्ध भुजंगासन भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू फुल और हाफ. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 1 इन, आउट. 2 in, out. 3 in, out. 4 in, out. 5 in, out. 6. Relax for a while. नेक्स्ट ब्रीदिंग इज नौकासन ब्रीदिंग. वो भी सेम है, हाथों को पैरों को उठाना है ब्रीदिंग के साथ और ब्रीदिंग आउट में दोनों एक्सट्रीमिटीज को नीचे ले आना. ओके, लेट्स डू 6. हाथों को ऐसे स्ट्रेच करो. ओके, लेट्स स्टार्ट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. 3 इन, आउट. 4 इन, आउट. 5 इन, आउट. 6 एंड आउट. रिलैक्स करेंगे. ओके, लेट्स गो फॉर द अदर सेकेंड राउंड. फिर से हाथों को स्ट्रेच करो. सांस ले, सांस छोड़े. 1 अप डाउन. 2 अप डाउन. 3 अप डाउन. 4 अप डाउन. 5 अप डाउन. 6. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. और एक करवट लेके पीठ के बल लेट जाए ऑन योर बैक. ओके, ऑन द बैक वी विल डू नाउ 2 breathing practices. Relax. सेतु बंधासन में. ओके, सो fold the legs, bridge pose. Okay, so you will breathe in, expand and breathe out, relax. Okay, so यहाँ पे आप पैरों को मोड़ के थोड़ा एडियो को उठा सकते हैं. 2 types of breathing we can do. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. सांस ले, सांस छोड़े. 3 सांस ले, सांस छोड़े. 4 सांस ले, सांस छोड़े. 5 सांस ले, सांस छोड़े. 6. रिलैक्स. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. नेक्स्ट ब्रीदिंग इन सेतुबंधासन विल बी स्ट्रोक्स. जैसे हम कपालभाति करते हैं वैसे स्ट्रोक्स, पर यहाँ पे एड़ियों को उठाना नहीं है. सो फोल्ड द लेग्स. अपने पैरों को, घुटनों को अलग रखना है और दोनों एड़ियों में और नितंब में अंतर है. सो देयर इज सम डिस्टेंस एंड नाउ वी रेज अप एंड गिव द स्ट्रोक्स. ओके, कपालभाति strokes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Very good. Relax for a while. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज उत्तान भद्रासन स्ट्रोक्स. सो आपको क्या करना है, पैरों को ऐसे मोड़ो और दोनों पैरों के सोल्स को टच करो. पैरों से नमस्कार मुद्रा. एड़ियों को चिपका के रखना है. सोल घुटनों को नीचे, मतलब एड़ियों को अपने नितंब से चिपकाओ. स्टिक द नीज टू द पेरिनियम. ड्रॉप द नीज डाउन एंड रेज योर हैंड्स अप इन नमस्कार मुद्रा. ओके, सो यू हैव टू नाइसली स्टिक. रेज योर हैंड्स अप इन namaskar mudra, pushing the knees down. Now give the strokes of Kapalbhati. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Relax. Relax for a while before we go for the second round. This is a very effective way to stabilize the chest and the shoulders, and it is very effective way of doing Kapalbhati. Okay? Relax करें. अपने आप ही आपका abdomen अंदर की ओर खींचे जाता है. उत्तान भद्रासन में सेकेंड राउंड करते हैं कपालभाति का. फिर से पैरों को मोड़ो, हिप्स हील्स डाउन, रेज योर हैंड्स अप, गिव द स्ट्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Relax for a while now. We did various asanas, and in various asanas we were trying to do the breathing practices. Relax करेंगे. Okay, stretch yourself now nicely. Do a nice stretch, relax, release. अब इतने सारे आसनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है जब हम इस तरह से आसनों को ब्रीदिंग के साथ करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ सिट इन सुखासन एंड लेट अस गो फॉर सिंपल टेक्निक्स विच वी डू डेली. हम कुछ प्राणायाम करेंगे. देखो अभी हमारा शुद्धि क्रिया ऑटोमेटिकली हो चुका है. सो वी आर रेडी फॉर ऑल द प्राणायाम्स ऑल्सो. बेसिक प्राणायाम जो बैलेंसिंग प्राणायाम है वो करेंगे, एंड वी विल गो फॉर अनुलोम विलोम प्राणायाम. ओके, सो अनुलोम विलोम के लिए आप सुखासन में या स्वस्तिकासन में बैठेंगे. ओके, बैक स्ट्रेट, हैंड्स इन ध्यान मुद्रा. मेक अ मुद्रा, चिन मुद्रा, एंड क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल विद द राइट हैंड थंब. ब्रीद इन विद द लेफ्ट, क्लोज द लेफ्ट, ओपन द राइट, ब्रीद आउट. राइट ब्रीद इन, क्लोज राइट, ओपन लेफ्ट, ब्रीद आउट. दैट्स वन राउंड कंप्लीट. कंटिन्यू. सांस ले, सांस छोड़े. राइट से ही सांस को लेना है और राइट को बंद करें. लेफ्ट से सांस छोड़े. सेकेंड राउंड. इस तरह से और 4 राउंड्स खुद से करेंगे. Friends, remember, when you are doing Anulom Vilom Pranayam, you should not move your body and there should not be any sound of your breathing in and out. Let's go for 2 cooling pranayam, Shitli and Shitkari. ऐसे टंग को रोल करो. Breathe in from the mouth. Close the mouth. Take the tongue inside. Relax your facial muscles. Hold the breath inside. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out from the nose. Second round. Hold. Breathe out from the nose. So मुंह से सांस लेना है, नाक से सांस को छोड़ना है. लास्ट राउंड करें. Hold. Breathe out. Relax. Let's go for some normal breaths. Feel the cooling effect of Shitli Pranayam. Now go for Sitkari. Breathing in from the sides of the teeth. Clenching your teeth. Breathe in. Hold the breath. Keep the mouth muscles relaxed. Hold the breath inside the chest. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out from the nose. Second round. Hold. Breathe out. Last round. Hold. Breathe out. Relax for a while.
Shitli and Chitkari pranayams, very effective pranayams for high BP, stress, anxiety, feeling of heat in the body, acidity, lot of perspiration. उन लोगों ने ये प्राणायाम को रेगुलरली करना है. It's a very good practice even for thyroid issues. Okay, so now let's move on for the relaxing pranayams and they are भ्रामरी and ओमकार. भ्रामरी के लिए कानों को बंद करके आंखों को कपिंग करें. 3 बार भ्रामरी करेंगे. गहरी सांस ले. Gently place your hands in Dhyana Mudra. Back is straight. Let us chant 3 Omkars. Breathe in full. Feel the vibrations of Bhramari and Omkar. Now gently rub your palms. Give a gentle massage to your face. Again rub your palms. Move on your entire body. Once again rub your palms. Place on your face. Now look at your palms and open your eyes gently. Thank you friends. So we are